Hi, a very good evening, students. So let's begin with the tissues. So in the last class, I have taught you about the simple permanent tissues in plant, which are of three types: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. And further, we will start with the complex. But before doing the complex tissue, let me tell you about the epidermis. So it is a kind of a protective tissue. Protective tissues मतलब होता है कि जो outer coating होती है किसी भी cell की, इट इज़ एन आउटर कोटिंग ऑफ सेल दैट कवर द प्लांट पार्ट, जैसे कि स्टेम हो गया, रूट, फ्रूट्स, फ्लावर, लीव्स, तो इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. प्रोटेक्शन किस चीज़ से? जैसे कि पैथोजेंस हो गए. ठीक है. अब प्रोटेक्टिव टिश्यूज में दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है आपका एपिडर्मिस और एक होता है कॉक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडर्मिस. एपिडर्मिस होता क्या है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल. It is a protective layer of plant organ, the outermost protective layer. So it has a protective role to play, and hence cell of the epidermal tissues form a continuous layer without intracell spaces. इसके अंदर intracell spaces बिल्कुल नहीं होती हैं. Let me show you here. ये रखो. तो सारे आपस में joint है without having a intracell spaces. ठीक है. So epidermis is commonly single layer. Cells of epidermis are elongated and closely packed. काफ़ी वो होते हैं, compact होते हैं. So there is no intracell space between them. The cells are generally thickened on their outer and radial sides and thin wall on the inner side. In the aerial part का मतलब जो aquatic plants होते हैं, the outer thick wall are so impregnated with the water impermeable fatty substance called cutin. Cutin का मतलब होता है कि cutin एक तरह का substance है, waterproof type. ठीक है. ये as a protective layer form करेगा in the aquatic plants. ठीक है. उनको cover करेगा ताकि उसमें से जो water है वो absorb ना होए और ज़्यादा water lose ना होए. So in the epidermis of plant there are small pores present. इनकी लीफ के अंदर small pores होते हैं जिन्हें हम usually बोलते हैं stomata. So stomata are closed by two kidney shaped cells called guard cells. They are necessary for exchanging gases with atmosphere. अब ये close and open होते हैं guard cells and they provide exchange of gases. Leaf of land plant contains stomata on their lower surface. कभी आपने देखा होगा किसी भी लीफ को नीचे से उसके जो लोअर सरफेस होता है लीफ का, स्मॉल स्मॉल पोर्स हमें इजीली विजिबल हो जाते हैं. और एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होता है अपर सरफेस, यानी कि जो लैंड प्लांट है उसमें लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होंगे और एक्वेटिक प्लांट के ऊपर अपर सरफेस पे स्टोमेटा होंगे. एपिडर्मस सेल ऑफ रूट हुज फंक्शन इज water absorption commonly bear long hair-like parts that gently increase total surface area for absorption. जो roots के अंदर जो epidermis cells होते हैं, अब देखा गया है कि roots में काफ़ी सारे hair होते हैं, तो उनका function क्या होता है ताकि जो absorption का area है वो ज़्यादा हो सके. In some plant like desert plant, epidermis has a thick waxy coating of cutin in its outer surface to prevent water loss. तो aerial plants के अंदर भी cutin की coating होती है ताकि ज़्यादा water अंदर ना absorb हो पाए, और desert plants के अंदर भी cutin की coating होती है ताकि जो plant के अंदर जो water है वो loss ना हो पाए. So epidermis basically है क्या? It is the outermost layer of a cell. तो it is a kind of a protective tissue. तो बेसिकली जो फंक्शंस क्या होते हैं इसके? प्रोटेक्शन. फर्स्ट तो है प्रोटेक्शन कि एपिडर्मिस इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट दैट प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजेंस एंड पेस्ट. ठीक है. यानी कि ये हमें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं बायोटिक वन, तो उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. Water loss. By the presence of cuticle, it checks the rate of water loss from the aerial parts. यानी कि जो cutin material है, जो cutin की coating होती है, वो चेक करती है कि ज़्यादा water ना लॉस होए या ज़्यादा water ना गेन होए. Hair यानी कि जो root hair होते हैं,
It's the occurrence of epidermal hair produces an insulating stationary layer for air. यानी कि air का passage भी होता है hair से. Stomata, they regulate exchange of gases. Stomata are also the seat of major loss of water in transpiration. So transpiration keeps the aerial parts cool. बस आपने ये 4 आपको जो सिलेबस में है वो 4 ही है. प्रोटेक्शन, वाटर लॉस, हेयर एंड स्टोमेटा. तो स्टोमेटा क्या करेगा बेसिकली, ये ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल में हेल्प करता है और स्टोमेटा से जो वो है ट्रांसपिरेशन इजिली होती है एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. नेक्स्ट था आपका प्रोटेक्टिव पार्ट जो था कॉक. तो इट इज द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज ऑफ ओल्डर स्टेम एंड रूट्स. जो लकड़ी होती है बेसिकली, जो कॉक यानी कि ये वुडी पार्ट के ऊपर का आउटर सरफेस, आउटर लेयर होती है. कॉक और bark is formed by a secondary lateral meristem called कॉक कैम्बियम और फिलाजन. तो इसको बेसिकली कॉक कैम्बियम कहते हैं. कॉक कैम्बियम produces secondary cortex on the inner side and cork on the outer side. तो it is a rectangular in outline. जिसके functions क्या होंगे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रोब्स, इंसुलेशन. इंसुलेशन का मतलब कि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा ताकि इनको कोई इंजरी ना हो पाए. लेंटिसेल, लेंटिसेल मतलब कि लेंटिसेल प्रेजेंट, ये सेल्स होते हैं जो कॉक के अंदर या बाक के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एंड कमर्शियल यूज लाइट इन वेट है, कंप्रेसिबल है, नॉन रिएक्टिव है, इंसुलेटिंग है, स्टॉपर्स फॉर बॉटल, इंसुलेशन बोर्ड, शॉक एब्जॉर्बर. तो स्पोर्ट्स कोट काफ़ी चीज़ों में ये कॉक जो है हेल्प करती है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ये 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम बेसिकली ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और जो फ्लोएम होता है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करेगा. So a complex permanent tissue may be defined as a group of more than one type of cell having a common origin and working together or as a unit to perform a common function. Xylem and phloem, ये दोनों वेस्कुलर टिश्यूज है. वेस्कुलर मतलब कि इनको कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं क्योंकि ये वाटर कंडक्ट करेगा और दूसरे वाला फूड को कंडक्ट करेगा. सो ये जाइलम 4 टाइप के होते हैं. जाइलम ट्रैकिएट्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर एंड जाइलम वेसल्स. First coming towards the xylem. So xylem, it is a chief conducting tissues of vascular plants responsible for conduction of water and inorganic solutes. यानी कि पानी को और जो मिनरल्स होते हैं उन्हें ये कंडक्ट करेगा. ये 4 टाइप्स के हैं, ट्रैकियार्ड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. ट्रैकियार्ड्स देखा था कि लॉन्ग टाइप ऑफ ट्यूब है, बेसिकली वो डेड सेल की बनी होती है. ठीक है, डेड सेल की होती है जो ट्रैकियार्ड्स होते हैं. So xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. The cell have thick wall and many of them are dead cells. तो ट्रैकियार्ड्स और जो वेसल्स हैं ये दोनों डेड सेल की बनी होती है. इनका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है. दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब कि ये ऊपर को पानी को कंडक्ट करेंगे, पानी और मिनरल्स को, लेकिन जो इनकी डायरेक्शनल होती है वो होती है यूनि डायरेक्शनल. मतलब कि ये डाउन से अप जाएंगे, अप से डाउन नहीं आ पाएंगे क्योंकि पानी कहाँ से कनेक्ट करेंगे, रूट्स में से. रूट्स कहाँ पे होते हैं, नीचे. तो पानी को जो ये एब्जॉर्ब करेंगे वो नीचे से एब्जॉर्ब करके ऊपर तक लेके जाएंगे. द पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प इन द साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर. सो इसका जो मेन फंक्शन है, इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द शूट एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. Xylem vessels, the cells of vessel are placed one upon the other and their end wall are either absent or possesses perforations. They form long tubes or channel for conduction of water and minerals. Vessels are found mainly in angiosperms. Tracheids or vessels are together called trachary elements. Basically vessels और tracheids ये दोनों डेड सेल की बनी होती हैं, दोनों ही वर्टिकल होती है. दोनों का काम क्या होएगा, टू conduct the water.
जाइलम पेरेन्काइमा, तो इसके अंदर पेरेन्काइमेटिक सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये एक तरह का फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जाइलम फाइबर्स, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। जाइलम पेरेन्काइमा हेल्प टू स्टोर द फूड एंड जाइलम फाइबर ये क्या प्रोवाइड करेंगे, इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आपका फ्लोएम। तो फ्लोएम इज अ चीफ फूड कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ वेस्कुलर प्लांट, यानी कि ये कंडक्ट करेगा, ये फूड कंडक्ट करेगा। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स, लेट मी शो यू दिस डायग्राम। ये होते हैं फ्लोएम के, इसमें आपके सीव ट्यूब्स भी हैं, कंपेनियन सेल भी है, ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा भी है एंड फ्लोएम फाइबर भी है। तो बेसिकली जो इसमें जो सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब का फंक्शन होएगा तो जो फ्लोएम है 4 टाइप के एलिमेंट्स का बना हुआ था, और जो फ्लोएम के अंदर जो डायरेक्शन होती है बाई डायरेक्शन। जैसे कि जाइलम में यूनि डायरेक्शन थी, बट फ्लोएम में बाई डायरेक्शन होती है, मतलब कि कंडक्शन डाउन टू अप भी होगी, अप टू डाउन भी होगी। अब फंक्शंस क्या है फ्लोएम के, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। नाउ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड इनऑर्गेनिक सल्यूट इन द वेस्कुलर प्लांट, और जो फ्लोएम है इट कंडक्ट ऑर्गेनिक सल्यूट, मतलब कि जो फूड पार्टिकल्स होंगे। कंडक्शन मोस्टली अकर इन वन डायरेक्शन, और इसमें कंडक्शन इन बोथ डायरेक्शन। कंडक्शन कौन करेगा, ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स जाइलम में, और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स। इट कंपोनेंट्स इंक्लूड ट्रैकियार्ड, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, और उसके जो कंपोनेंट्स होंगे सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जाइलम के अंदर ट्रैकियार्ड्स, वेसल एंड जाइलम फाइबर आर डेड एंड ओनली जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग, यानी कि ट्रैकियार्ड्स, वेसल एंड जाइलम फाइबर ये डेड सेल के बने होते हैं, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग सेल का होता है, और इसके अंदर सिर्फ फ्लोएम फाइबर है वो डेड को आएगा, बाकी सारे लिविंग के होंगे, लाइक सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा ये सारे लिविंग होंगे, सिर्फ फ्लोएम फाइबर इज ऑफ डेड सेल। तो जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो, और उसके अंदर फ्लोएम के अंदर कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होती है, क्योंकि जाइलम के अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करेगा उसको, जाइलम फाइबर, ठीक है, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, लेकिन फ्लोएम के अंदर कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ पॉसिबल नहीं होती है। So these are the your complex permanent tissues, ठीक है। So just watch this video जाइलम एंड फ्लोएम के ऊपर और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के ऊपर। तो अगर कोई भी डाउट है देन में से क्लियर कर लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज।